Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be section 321 to section 327 of Criminal Procedure Code, which is a part and parcel of chapter of General Provision as to Inquiries and Trials. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 321 से लेकर सेक्शन 327। इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। General provision as to inquiries and trials, section 321 to 327 we will discuss in this lecture. Previous sections we have discussed in the earlier lecture. You can watch those video from my YouTube channel. You can select the playlist of Criminal Procedure Code where we will get those lectures. Section 321 deals with withdrawal from prosecution. So the public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of the case may, with the consent of the court, at any time before the judgment is pronounced, withdraw from the prosecution of any person either generally or in respect of any one or more of offense for which he is tried, and upon such a withdrawal, if it is made before a charge has been framed, the accused shall be discharged in respect of such offense or offenses, and if it is made after a charge has been framed or when under this code no charge is required, he shall be acquitted in respect of such offense or offenses. So section 321 enable a public prosecutor or assistant public prosecutor that he can withdraw the charges against any accused person with the consent of court before the judgment is pronounced. So, and suppose if such a public prosecutor withdraw any charges against any accused, then if such charges are withdrawn before the framing of charge, then such accused will be discharged, and if such withdrawal of charges is after framing of charge, then the accused will be acquitted. Section 321 ये कह रहा है कि सेक्शन 321 पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इनेबल करता है, ये उसको पावर देता है कि वो कोर्ट के कंसेंट से जजमेंट प्रोनाउंस होने के पहले किसी भी अक्यूज्ड के अगेंस्ट में जो चार्जेस है वो विड्रॉ करने की परमिशन मांग सकता है। कोर्ट को कह सकता है कि ये अक्यूज्ड के अगेंस्ट के चार्जेस में विड्रॉ करना चाहता हूं। सो अगर फॉर एग्जांपल वो चार्जेस विड्रॉ कब हो रहे हैं, चार्ज फ्रेम होने के पहले अगर वो फॉर एग्जांपल चार्जेस विड्रॉ हो रहे हैं तो अक्यूज को डिस्चार्ज किया जाएगा, और अगर चार्ज फ्रेम होने के बाद अगर चार्जेस विड्रॉ हो रहे हैं तो वो अक्यूज को एक्विटल होगा उस पर्टिकुलर चार्जेस से, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑफेंस was against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends or was investigated by the Delhi Special Police Establishment under the Delhi Special Police Establishment Act, involved the misappropriation or destruction of or damage to any property belonging to a central government, or was committed by a person in the service of the central government while acting or purporting to act in the discharge of his official duty. But इसमें एक प्रोविजो है सेक्शन 321 में, और ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल के that particular offense was against any law, ऐसा ऑफेंस है, ऐसे लॉ के अगेंस्ट में है कि जिसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन के वो एक्सटेंड हो रहे हैं, है ना, एक। दूसरा, या ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें इन्वेस्टिगेशन किसने किया है, ऐसा कोई ऑफेंस जिसको इन्वेस्टिगेट किया है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ने, अगर इन्वेस्टिगेट किया है किसी ऑफेंस को, या ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है, या उस प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है, या उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ है, या ऐसा कोई पर्सन ने ऑफेंस किया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ड्यूटी करता है और अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए अगर उसने वो ऑफेंस किया है। अब ऐसे ऑफेंस के अक्यूज्ड को के अगेंस्ट में अगर चार्जेस विड्रॉ करना है तो वो कौन करेगा फिर, देखिए
and the prosecutor in charge of the case has not been appointed by the central government, और जो वो prosecution in charge है उस केस का, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया हुआ होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ही शैल नॉट अनलेस he has been permitted by the central government to do so move the court for its consent to withdraw from the prosecution, and the court shall before according consent direct the prosecutor to produce before it to the permission granted by the central government to withdraw from the prosecution. अब इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल कि अगर ऐसा ऑफेंस कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ का वायलेशन हुआ है, दूसरा स्पेशल दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ने अगर इन्वेस्टिगेट किया है मैटर को, या सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन करने का, डिस्ट्रॉय करने का, डैमेज करने का ऑफेंस किया है किसी अक्यूज ने, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने उसके ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए कोई ऑफेंस किया है, अब अगर ऐसे अक्यूज के अगेंस्ट के चार्जेस अगर विड्रॉ करना है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, अब स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट के सामने वो एप्लीकेशन मूव कर नहीं सकता कंसेंट के लिए। कब तक नहीं कर सकता? जब तक कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना ले ले। तो अगर स्टेट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगर करना है, चार्जेस विड्रॉ करना है, तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही चार्जेस विड्रॉ हो सकते हैं। लेकिन कौन से सिचुएशन में? जो अभी हमने 4 सिचुएशन डिस्कस की उसमें। अदरवाइज तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर विड्रॉ कर सकता है प्रोसिक्यूशन किसके अगेंस्ट के? अक्यूज्ड के अगेंस्ट के। अब इस पर प्रोबेबल क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग में विड्रॉ प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड? द स्टेट गवर्नमेंट, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द एग्रीव्ड पर्सन, द राइटर ऑफ एफआईआर। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नाउ सेक्शन 322, प्रोसीजर इन केसेस विच मैजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ, है ना, कि फॉर एग्जांपल मैजिस्ट्रेट ऐसी केसेस जो मैजिस्ट्रेट डिस्पोज नहीं कर सकता, उस सिचुएशन में प्रोसीजर क्या रहेगा? सेक्शन 322 ये कहता है, if in the course of any inquiry into an offense or a trial before a magistrate in any district the evidence appears to him to warrant a presumption that he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial। देखिए क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कि अगर कभी भी कोई इंक्वायरी के दौरान या कोई ट्रायल के दौरान अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है या कोई एविडेंस उसके सामने आए मैजिस्ट्रेट के सामने कि जिसके चलते मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि उसको दैट ही हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस, कि उसको केस चलाने का कोई अधिकार ही नहीं है, जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उसका, या ट्राई द केस और कमिट इट फॉर ट्रायल, या वो कमिट करता है ट्रायल के लिए, और दैट the case is one which should be tried or committed for trial by some other magistrate in the district। तो इंक्वायरी या ट्रायल में अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो केस है ये वो खुद नहीं चला सकता है बल्कि ये केस कौन, दूसरा कोई कोर्ट चला सकता है, या और कमिटेड फॉर ट्रायल बाय सम अदर मैजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट, या दूसरे किसी मैजिस्ट्रेट को कमिट करना जरूरी है ये केस। अब फॉर एग्जांपल मैं एक मैजिस्ट्रेट हूं, मेरे पास कोई केस आई, अब केस आने के बाद इंक्वायरी के दौरान या ट्रायल के दौरान मुझे ऐसा लगे कि मुझे बीइंग मैजिस्ट्रेट मेरे जुरिस्डिक्शन में ये केस नहीं है और मैं ये केस नहीं चला सकता हूं, और यह मुझे ऐसा लगता है कि विच शुड बी ट्राइड और कमिटेड फॉर ट्रायल बाय सम अदर मैजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट, या मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं एक तालुके में जॉब कर रहा हूं, मैं मैजिस्ट्रेट हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई दूसरे तालुके के मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में वो आता है केस, तो मैं क्या करूंगा, उसको कमिट कर सकता हूं। समझ लो, दैट द केस शुड बी ट्राइड बाय द सीजेएम, या मुझे लगता है कि ये सीजेएम ने केस चलाना चाहिए, ही शैल स्टे द प्रोसीडिंग, मैं क्या करूंगा, प्रोसीडिंग को स्टे करूंगा, एंड सबमिट द केस विद अ ब्रीफ रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग इट्स नेचर to the CJM or to such other magistrate having jurisdiction as the CJM directs।
तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता चल गया इंक्वायरी में कि मैं ये केस नहीं चला सकता, तो मैं क्या करूंगा, सीजेएम को एक रिपोर्ट तैयार करूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि मुझे ये केस ट्राई करने का पावर नहीं है। मैं मैजिस्ट्रेट को ट्राई करने के लिए वो सीजेएम को ट्राई करने के लिए वो केस रेफर कर दूंगा, या सीजेएम से कहूंगा कि जो पर्टिकुलर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है ये केस चलाने का उसको ट्रांसफर किया जाए। दैट इज द पावर टू मी। The magistrate to whom the case is submitted may, if so empowered, either try the case himself or refer it to any magistrate subordinate to him having jurisdiction or committed the accused for trial. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सीजेएम को ट्रांसफर किया तो सीजेएम खुद वो केस चलाएगा, या उसके सबऑर्डिनेट जिसको वो पावर है, जुरिस्डिक्शन है वो केस चलाने का, उसको वो चलाने के लिए केस रेफर करेगा और कमिट द अक्यूज फॉर ट्रायल, और अक्यूज को उसके सामने कमिट करेगा, उसके सामने ट्रांसफर करेगा ट्रायल के लिए। अब सेक्शन 323 है, प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल मैजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी कमिटेड। अब सेक्शन 323 क्या कहता है, देखिए, इफ इन एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस और ट्रायल बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इट अपीयर्स टू हिम एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर साइनिंग द जजमेंट दैट द केस इज वन व्हिच ought to be tried by the court of session. Suppose if I am the JMFC and suppose if I am trying, if in the stage of inquiry or in the stage of trial, if I come to conclusion that this particular case should be committed and should be tried by the session court, which ought to be tried by the session court, कि एक सेशन कोर्ट ने चलाना चाहिए। मैं JMFC हूं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हूं, मेरे पास एक केस चल रहा है, इंक्वायरी के दौरान या ट्रायल के दौरान मुझे कभी भी ऐसा लगता है जजमेंट साइन करने से पहले तक कि मुझे लगता है कि ये केस सेशन ट्राइबल है और ये सेशन ने चलाना चाहिए, अगर मुझे ऐसा लगा क्या होगा, ही शैल कमिट इट to that court under the provision herein before contained, and thereupon the provision of chapter 18 shall apply to the commitment so made. तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये लगा कि ये केस सेशन ट्राइबल है और सेशन ने चलाना चाहिए, तो मैं बीइंग ए जेएमएफसी वो केस ट्रांसफर करूंगा, कमिट करूंगा सेशन कोर्ट को, और सेशन कोर्ट को वो प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो चैप्टर 18 में बताए हुए हैं। सेक्शन 324, ट्रायल ऑफ पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट कॉइनेज, stamp law or property. Where a person having been convicted of an offense punishable under chapter 12 or chapter 17 of the Indian Penal Code with imprisonment for a term of 3 years or upwards is again accused of any offense punishable under either of those chapter with imprisonment for a term of 3 years or upwards. Suppose if any person has already been convicted by the court under chapter 12 and chapter 17, that is offense relating to coinage, stamp law and property. Suppose if the court has already convicted for that particular offense and passed the sentence of 3 years or more, and such person, that particular accused has committed an offense again, he has committed an offense punishable with the same punishment, 3 साल या 3 साल से ज्यादा। इन शॉर्ट देखिए कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई कोर्ट ने किसी अक्यूज को सजा सुनाया है 3 साल या 3 साल से ज्यादा, कौन से ऑफेंस में, ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइन या ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टैंप लॉ। स्टैंप लॉ में के चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में अगर कोई ऑफेंस किया है, 3 साल से ज्यादा कोर्ट ने उसको सजा सुना दिया है, ऑलरेडी उसने सजा काट चुका है अक्यूज, फिर से उसने वही ऑफेंस किया वही चैप्टर में जिसमें 3 साल या ज्यादा पनिशमेंट है, उस सिचुएशन में क्या होगा देखिए। एंड द मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम द केस इज पेंडिंग इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस। और जो कोर्ट के सामने सेकंड केस पेंडिंग है, वो मैजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जो सेकंड ऑफेंस उसने किया है ये उसने ही किया है, कोर्ट को ऐसा लग रहा है, प्रिजम्पशन कोर्ट के पास है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, ही शैल बी सेंट फॉर ट्रायल टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन। सपोज मैं जेएमएफसी हूं और मुझे ये पता चला कि जो अक्यूज जो मेरे सामने अभी आया है जिसने कॉइन से रिलेटेड ऑफेंस किया है, इसको ऑलरेडी 3 साल या उससे ज्यादा सजा हो चुकी है और ये ऑफेंस भी उसी ने किया है ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, वो पर्सन को कहां पर भेजूंगा, आई शैल सेंड दैट पर्सन फॉर ट्रायल टू द सीजेएम और कोर्ट ऑफ सेशन।
मैं क्या करूंगा, सीजेएम के पास उसको केस चलाने के लिए ट्रांसफर कर दूंगा, उसको भेजूंगा या उसकी केस कमिट करूंगा सेशन कोर्ट के पास। Unless the magistrate is competent to try the case and is of opinion that he can himself pass an adequate sentence if the accused is convicted, या मुझे अगर ऐसा लगता है कि मैं competent हूं वो केस चलाने के लिए और मैं एडिक्वेट सेंटेंस, जितना मुझे पावर है उस सेंटेंस के अंदर मैं उसको दे सकता हूं, तो मैं खुद भी उस केस को चला सकता हूं। When any person is sent for trial to the CJM or committed to the court of session under subsection 1 and any other person accused jointly with him in the same inquiry or trial shall be similarly sent or committed unless the magistrate discharge such other person under section 239 or 245 as the case may be. Suppose if I sent the accused to the CJM or if I committed the case of accused to the session court under subsection 1, and suppose if along with the accused if some other persons are also the accused, then all the accused will be sent to the CJM or will be committed to the session court. For example, एक accused ने ऑफेंस किया हुआ है पहले जिसको 3 साल की सजा हो चुकी है। अब जो ऑफेंस किए वो 4 लोगों ने मिलकर किए, उसमें से एक अक्यूज्ड ऐसा है कि जिसको पहले भी सजा हो चुकी है। अब उसको तो मैं ट्रांसफर करूंगा सीजेएम के पास या कमिट करूंगा उसकी केस सेशन कोर्ट के पास। बाकी के 3 अक्यूज्ड का क्या, तो बाकी के 3 अक्यूज्ड भी उसके साथ ही ट्रांसफर होंगे, उनका केस लोअर कोर्ट में नहीं चलेगा, वो भी ट्रांसफर होंगे उसी के साथ। अगर उनको डिस्चार्ज किया हुआ नहीं है तो अगर उनको डिस्चार्ज कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डिस्चार्ज किया हुआ नहीं है तो वो भी ट्रांसफर किए जाएंगे। 325 प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सीवियर। देखिए, whenever a magistrate is of opinion after hearing the evidence for the prosecution and the accused that the accused is guilty and that he ought to receive a punishment different in kind from or more severe than that which such magistrate is empowered to inflict, where a magistrate is of opinion after hearing the evidence for the prosecution and the accused that the accused is guilty। मैजिस्ट्रेट पूरी केस सुनने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि हाँ अक्यूज ने ही ऑफेंस किया है, अक्यूज दोषी करार पाया गया है, and that he ought to receive a punishment different in kind from or more severe than that which such magistrate is empowered to inflict, and now the court found guilty to the accused person and the court feels that the accused is liable to face the punishment which he is not empowered to inflict such a punishment। In short, देखिए कि मैं मैजिस्ट्रेट हूं जेएमएफसी, मेरे सामने एक केस चला, केस चलने के बाद मैं ये कंक्लूजन पे आया कि अक्यूज ने ही ऑफेंस किया है। आई फाउंड गिल्टी टू द अक्यूज पर्सन, कि अक्यूज दोषी पाया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको जो सजा सुनाई जानी चाहिए वो 5 साल की होनी चाहिए। अब मैं जेएमएफसी है तो मुझे 3 साल की सजा सुनाने का ही पावर है, मैं 5 साल की सजा नहीं सुना सकता हूं, लेकिन उसको सजा कितनी होनी चाहिए, 5 साल की होनी चाहिए। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा फिर, और बीइंग अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास इज ऑफ ओपिनियन दैट द अक्यूज्ड ought to be required to execute a bond under section 106, he may record the opinion and submit his proceeding and afterward the accused to the CJM to whom he is subordinate। तो अगर मुझे 3 साल की सजा सुनाने का पावर है, मैं 5 साल की सजा सुनाना चाहता हूं तो मैं तो नहीं सुना सकता। या फॉर एग्जांपल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अगर अक्यूज्ड के तरफ से सेक्शन 106 ऑफ सीआरपीसी में बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना चाहता होगा तो उसको पावर नहीं है, तो अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, उस अक्यूज को ट्रांसफर करना पड़ेगा, अक्यूज को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, किसके सामने, सीजेएम के सामने। अब मुझे 5 साल की सजा सुनाने का पावर नहीं है, मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड करूंगा अक्यूज को सीजेएम के पास। अब मैं सबऑर्डिनेट हूं सीजेएम के, तो मैं 5 साल की सजा तो सुना नहीं सकता, लेकिन मैं क्या करूंगा फिर उसको फॉरवर्ड करूंगा सीजेएम के पास। अब होगा ऐसा, सीजेएम के पास फॉरवर्ड करने के बाद क्या होगा, when more accused than one are being tried together and the magistrate considered it necessary to proceed under subsection 1 in regard to any of such accused, he shall forward all the accused who are in his opinion guilty to the chief judicial magistrate। अब फॉर एग्जांपल 4 accused ने ऑफेंस किए हैं, लेकिन 4 में से फॉर एग्जांपल एक को ही 5 साल की सजा सुनाने का है, बाकी 3 को 2-2 साल की सजा सुनाने की है, तो मैं तो 2 साल की सजा सुना सकता हूं जेएमएफसी होने के नाते, लेकिन मैं सिर्फ एक को ट्रांसफर नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, अगर ट्रांसफर करना है, फॉरवर्ड करना है, तो चारों अक्यूज्ड को सीजेएम के पास फॉरवर्ड करूंगा।
The CJM to whom the proceedings are submitted may, if he thinks fit, examine the parties and recall and examine any witness who has already given evidence in the case. अब मैंने CJM के पास ट्रांसफर कर दिया. CJM क्या करेगा कि जो ऑलरेडी एविडेंसेस हो चुके हैं, CJM को पावर है कि वो विटनेसेस को बुला के वापस से उनको एग्जामाइन कर सकता है. And may call for and take any further evidence and shall pass such judgment, sentence or order in the case as he thinks fit and is according to law. तो मैं CJM को अगर लगा कि और कोई एविडेंसेस को बुलाना है, CJM उनको बुला सकता है, उनकी एग्जामिनेशन कर सकता है और उसके बाद जजमेंट पास करेगा. सेक्शन 326 conviction or commitment on evidence partly recorded by one magistrate and partly by another. Whenever any judge or magistrate, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in any inquiry or a trial, ceases to exercise jurisdiction therein and is succeeded by another judge or magistrate who has and who exercises such jurisdiction. होगा क्या? Suppose being a JMFC, if I tried a particular case and in that particular process of trial, I have examined the three witnesses. I have examined the three witnesses, and after examining three witnesses, if I have been transferred and on my place if some other JMFC came, समझ रहे हो? मैंने क्या किया? JMFC हूं मैं, एक केस चला रहा हूं, केस चलाते हुए ट्रायल चल रहा है, ट्रायल में मैंने 4 विटनेस का एग्जामिनेशन किया. 4 विटनेस का एग्जामिनेशन होने के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया और मेरे जगह कोई और आ गया वहां पर JMFC. अब JMFC तो मेरे जगह आ गया, ऑलरेडी 4 विटनेस का एग्जामिनेशन हो गया है. द जज और मैजिस्ट्रेट सो सक्सीडिंग में एक्ट ऑन द एविडेंस सो रिकॉर्डेड बाय हिज प्रीडिसेसर और पार्टली रिकॉर्डेड बाय हिज प्रीडिसेसर एंड पार्टली रिकॉर्डेड बाय हिमसेल्फ. तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जो मेरे जगह आया हुआ है, मैंने 4 विटनेस को एग्जामाइन कर दिया है, 4 बाकी है, तो मेरे जगह आया हुआ क्या कर सकता है? 4 का एग्जामिनेशन वो कंसिडर कर सकता है. जो 4 है उनको बुलाकर, बाकी बचे हुए 4 को बुलाकर एग्जामाइन करेगा और अपना जजमेंट पास करेगा. समझ रहे हो? या वो 4 को वापस से भी वो बुला सकता है, provided that if the succeeding judge or magistrate is of opinion that further examination of any of the witness whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, he may resummon any such witness and after such further examination, cross-examination, re-examination if any, as he may permit, the witness shall be discharged. समझ रहे हो कि अगर मैंने जो 4 विटनेस का एग्जामिनेशन कर चुका था, अगर नए मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि वो विटनेसेस को फिर से बुलाया जाए, तो उसको पावर है वो उनको फिर से बुलाकर उनका फिर से एग्जामिनेशन कर सकता है, चाहे तो. Subclause 2 deals with when a case is transferred under the provision of this code from one judge to another judge or from one magistrate to another magistrate, the former shall be deemed to cease to exercise jurisdiction therein and to the succeeded by the latter within the meaning of subsection 1. क्या फॉर एग्जाम्पल मैं एक केस चला रहा था, मेरे जुरिस्डिक्शन में, सपोज मैं JMFC हूं, मैं एक केस चला रहा था, मेरे से केस वो ट्रांसफर करके किसी और को दे दिया गया है, तो उसके लिए भी सेम प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे जो हमने अभी डिस्कस किया था. कि फॉर एग्जांपल मैंने 4 विटनेसेस को एग्जामाइन कर दिया और 4 विटनेसेस को एग्जामाइन करने के बाद अगर वो केस मेरे से किसी और को ट्रांसफर किया गया, तो वो 4 विटनेसेस को एज इट इज रख के बाकी के विटनेस को एग्जामाइन कर सकता है वो कोर्ट, या चाहे तो उनको वो 4 विटनेसेस को फिर से बुलाकर भी एग्जामाइन कर सकता है. नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू समरी ट्रायल or to cases in which proceedings have been stayed under section 322 or in which proceeding have been submitted to a superior magistrate under section 325. तो ये जो समरी ट्रायल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, या मैजिस्ट्रेट अगर सेक्शन 325 में सुपीरियर मैजिस्ट्रेट को लिए अगर केस चलाने के लिए सबमिट किया गया है, उसके लिए भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे. सेक्शन 327 कोर्ट टू बी ओपन. The place in which any criminal court is held for the purpose of inquiring into or trying any offense shall be deemed to be an open court to which the public generally may have access so far as the same can conveniently contain them. क्या होगा कि क्रिमिनल केस जहां पर भी चलेगी, या क्रिमिनल केस की इंक्वायरी हो रही है या ट्रायल चल रहा है, तो वो ऑफेंस का ट्रायल ओपन कोर्ट में हो रहा है ऐसा ट्रीट होगा. एंड टू विच द पब्लिक जनरली मे हैव एक्सेस, जनरल पब्लिक उस केस को एक्सेस कर सकती है, मतलब कोर्ट में जाकर वो केस को देख सकती है, उसको ऑब्जर्व कर सकती है. प्रोवाइडेड दैट द प्रिसाइडिंग जज और मैजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट
order at any stage or an inquiry into a trial of any particular case that the public generally or any particular person shall not have access to or by or be or remain in the room or building used by the court. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन कोर्ट में नहीं आना चाहिए, इससे केस में कुछ ना कुछ दखल हो सकता है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट को पावर है ऐसे पर्सन को ना आने का वो ऑर्डर पास कर सकता है. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, the inquiry into a trial of a rape or an offense under section 376 to 376E of the Indian Penal Code shall be conducted in camera. अब जो रेप का ऑफेंस है वो प्रोसीडिंग कैसी चलेगी? इन कैमरा प्रोसीडिंग चलेगी, ओपन कोर्ट में वो प्रोसीडिंग नहीं चलेगी. Provided that the presiding judge may, if he thinks fit, or on an application made by either of the parties, allow any particular persons to have access to or by or be or remain in the room or building used by the court. अब क्या होगा? रेप का जो ऑफेंस है वो उसकी प्रोसीडिंग चलेगी इन कैमरा, लेकिन अगर दोनों पार्टी में से अगर कोर्ट के सामने अगर कोई परमिशन के लिए एप्लीकेशन करता है और ये कहता है कि ये पर्सन को प्रेजेंट रहने की परमिशन दी जाए, तो उस सिचुएशन में कोर्ट ऐसे पर्सन को परमिशन दे सकता है. Provided further that in camera trial shall be conducted as far as practicable by a woman judge or magistrate. In camera proceeding practical जहां तक हो सके woman judge ही conduct करेगी. Where any proceeding are held under subsection 2, it shall not be lawful for any persons to print or publish any matter in relation to any such proceeding except with the previous permission of the court. अगर रेप की इन कैमरा प्रोसीडिंग चल रही है तो उस सिचुएशन में कोई भी पर्सन उस रेप से रिलेटेड की प्रोसीडिंग का कुछ ना तो कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल दे सकता है और ना कोई पब्लिकेशन वो कर सकता है कोर्ट के बिना परमिशन के. अगर कोर्ट परमिशन देता है तो ठीक है, अदरवाइज वो ना न्यूज पब्लिश कर सकता है ना कोई आर्टिकल प्रिंट कर सकता है. प्रोवाइडेड दैट द बैन ऑन प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ ट्रायल प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप मे बी लिफ्टेड सब्जेक्ट टू मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज. आपने देखा होगा कि बहुत से रेप से रिलेटेड आर्टिकल्स तो छपते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ भी आती है, लेकिन उसमें जो विक्टिम है और अक्यूज्ड का नाम, विक्टिम का खासतौर से विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, डिस्क्लोज नहीं किया जाता है. आपने देखा होगा निर्भया जो था वो निर्भया विक्टिम का नाम नहीं था, तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना जरूरी है. अगर आर्टिकल पब्लिश भी करना है तो विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा. प्रोबेबल क्वेश्चन है 327 पे, अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द प्रोविजन रिगार्डिंग इन कैमरा प्रोसीडिंग इज मेंशन. 325, 326, 327, 328. 327 में इन कैमरा प्रोसीडिंग के प्रोविजन है. So these are the particular provision relating to section 321 to 327. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.